السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Dear brothers and sisters, میری پیاری ماؤں بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست میں میں پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. I welcome you to today's program once again. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں جیسے ہم نے سب سے پہلے past simple سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے present simple سیکھا، اور اب انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں فیوچر سمپل سیکھیں گے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے دوسرے اور ٹینسز بھی انٹروڈیوس کرتے جائیں گے باذن اللہ انشاءاللہ. تو فیوچر سمپل کے تعلق سے بس بالکل سی سمپل سی بات ہے، جیسے ہم کسی بھی زبان میں فیوچر سمپل کا استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے یا اس چیز کے ذکر کے لیے جو ہم اب سے چاہے کچھ دیر بعد ہو، چاہے کل ہو، چاہے ایک دن ایک مہینہ بعد ہو، اگر کچھ کر رہے ہیں ہم تو اس کے لیے ہم فیوچر کا استعمال کرتے ہیں. اور فیوچر مستقبل ہم جانتے ہیں کہ مستقبل وہ ہے جو اب سے ایک لمحے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ مستقبل کہلاتا ہے. اسی حساب سے تو فیوچر سمپل کے سینٹنسز بڑے سمپل، بڑے آسان ہوں گے، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ فریم ورک وہی رہے گا. یعنی آپ پھر سے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ کا استعمال کرتے ہوئے فیوچر کا جملہ بنانا شروع کرو گے، اور آئی، وی، یو، دی، یو، دے، ہی، شی، اٹ کے آنے کے بعد آپ اپروپریٹ ورب لاؤ گے، اور اس کے بعد آپ کا جملہ پھر مکمل ہے. اور اپروپریٹ ورب کے اور ان ضمائر کے بیچ میں ایک لفظ آئے گا، وہ ہوگا will. WILL will. یہ تمام ہی کے لیے وہی ہوگا. جیسے ہم نے پریزنٹ سمپل میں دو الگ الگ پڑھے تھے کہ بعض جگہ ڈو کا استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ ڈز کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر بعض جگہ ایس لگتا ہے ورب میں، بعض جگہ ایس نہیں لگتا ہے ورب میں. یہ یہاں ایسا ماجرا بالکل نہیں ہے. یہاں پر سیدھے سیدھے آپ جو بھی ضمیر لائیں، یا پھر آپ ضمیر کی بجائے کوئی نام، کوئی اسم لے آئیں، اس کے بعد will کا لفظ لگائیں. اس کے بعد جو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی سیکھے تھے، 3 کالمز بنائے تھے ہم نے پچھلے لیسن میں، یاد ہے آپ کو؟ انفینیٹیو کہا تھا پہلے والے کو، پھر دوسرے والے کو کہا تھا پریزنٹ سمپل، تیسرے والے کو دوسرے والے کو پاسٹ سمپل کہا تھا، تیسرے والے کو پاسٹ پارٹیسپل کہا تھا. تو یہ جو پہلا والا ہم نے کالم استعمال کیا تھا اس دن، انفینیٹیو والا، وہی کالم پھر سے یہاں بھی آئے گا. بس فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ will کا استعمال کرو گے. مثال کے طور پر I will be late to work tomorrow. I will be late to work tomorrow. اسی حساب سے she will travel to London tomorrow, اور she will travel to London tonight. وہ آج رات لندن کا سفر کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کے will کے جملے بنتے جائیں گے. ایک چیز یہ ہے اس میں کہ جیسے ہم نے past tense میں بھی دیکھا تھا اور present tense میں بھی دیکھا تھا کہ آپ چاہو تو کنٹریکٹڈ الفاظ استعمال کر سکتے ہو، ویسے یہاں پر بھی آپ کنٹریکٹڈلی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہو. I اور will سپریٹلی کہنے کے بجائے آپ چاہو تو I'll، ٹھیک ہے، will، I کے بعد we will، ٹھیک ہے، we will کہنے کے بجائے will، ٹھیک ہے، you will، they'll، she will، he'll. سو اسی طریقے سے آپ تمام جملے بنا سکتے ہو. میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. India will win the match. India will win the match. اسی حساب سے I will see you tomorrow again. انشاءاللہ، کیونکہ آج وینسڈے ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے چوتھے لیسن کے سلسلے میں دوبارہ ملاقات کریں گے. تو میں کہہ سکتا ہوں I will see you tomorrow at 5 PM. میں کل شام آپ سے 5 بجے ملوں گا.
तो इस तरीके के जब भी आपको जुमले बनाने हो तो आप will का इस्तेमाल करोगे। एक चीज ये जान लें कि अगर कोई चीज पहले से तयशुदा है, अब चाहे वो तयशुदा चीज आज शाम के लिए हो या 1 महीने बल्कि 2 साल के बाद भी के लिए हो, तो भी कोई मुज़ायका नहीं, तब आप इसको विल का इस्तेमाल वहां नहीं करोगे। वहां क्या इस्तेमाल किया जाता है मैं इंशाअल्लाह ताला आज नहीं किसी और दिन बताऊंगा। बस इतना जानकर चलें कि अगर कोई पहले से प्रोग्राम तय हो, ठीक है ना, आज शाम किसी की पार्टी है, 3 अक्टूबर को कोई मिल रहा है आपसे और उसी हिसाब से 6 महीने बाद आपकी शादी है या 6 महीने बाद आप शादी करने वाले हो, इस तरह के जो जुमले बनाएंगे यहां पर आप उमूमन विल का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे उसका इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा एक खास मौके पर अप्रोप्रिएट टाइम पर मैं उसकी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह ताला। और कई दफा आप विल का इस्तेमाल करते हुए प्रॉबेबली, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो शायद कल आएगा, he will probably come tomorrow, he will perhaps come tomorrow। ठीक है, तो इस तरीके के अल्फाज भी आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में ला करके जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुआ मुस्बत जुमले बनाना। आइए अब मनफी जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। मनफी जुमले इसके फिर बिल्कुल बड़े सिंपल से होंगे। विल की जगह पर आप विल नॉट कहोगे। अगर आप इसको फिर श्रिंक करके इस्तेमाल करना चाहो तो विल नॉट को आप श्रिंक करके वोंट कहोगे। ध्यान रखें प्रोनाउंसिएशन के वक्त पर ये जो डब्ल्यू आप बोल रहे हो उसको लिल्लाह आप उसको बिल ना कहें या वोंट ना कहें। ये वोंट नहीं है ना ये विल है। ठीक है, ये विल है और ये वोंट होगा। ठीक है, he won't be available tomorrow, वो कल मौजूद या अवेलेबल नहीं होंगे। he won't be available tomorrow। आप चाहें तो he'll not be available भी कर बोल सकते हो, यानी he और will को आपने मिला करके कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन बनाया और not को आपने वैसे ही रखा, तो चाहे आप वैसे भी इस्तेमाल करें, इसमें भी कोई मुजायका नहीं। उसकी 2 और मिसालें दूं आपके सामने। she won't write the book, she won't write the book, he won't pass the exam, he वो चूंकि मेहनत नहीं कर रहा है, he won't pass the exam। तो इस तरीके से आप जुमले नेगेटिव भी बना सकते हो। अब चलिए नेगेटिव के साथ हम क्वेश्चंस बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमें पता है कि 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं, दूसरे वो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जिनमें आप उमूमन जवाब के तौर पर यस या नो पाते हो, जिसका जवाब उमूमन यस या नो की शक्ल में दिया जाता है, तो वैसे जुमले या वैसे सवाल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। वहीं जहां तफसील मतलूब होती है उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। और हम जब तक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाते रहें तब हमारा होगा ये कि सबसे पहले विल आएगा। याद रखें, सबसे पहले विल आएगा, फिर उसके बाद आपकी जमाइर या नेम आएंगे, नाम आएंगे। विल इंडिया नॉट और विल इंडिया विन द मैच, या फिर उसी हिसाब से विल ही विन द टॉस, या विल ही राइट द बुक, विल ही ट्रैवल अलोन। तो इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे। ठीक है, तो विल लगा लिया आपने, आई वी यू दे ही शी इट में से एक लगा लिया आपने, या फिर नाम लगा लिया आपने। उसके बाद वो जो 3 कॉलम्स जिनकी बात मैंने की थी उनमें से इन्फिनिटिव कॉलम में से कोई एक वर्ब ले आओगे, उसको ऐसे ही ला करके लगाना है, उसके साथ फिर और कोई चीज नहीं जोड़नी है। ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया। विल ही ट्रैवल अलोन टुमारो, क्या वो कल अकेले सफर करेंगे? जवाब में आप यस ही विल, नो ही वोंट। यस ही विल, जी हां, नो ही वोंट, जी नहीं। तो इस तरीके से आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के जवाबात बनेंगे। उसी हिसाब से अगर आप नेगेटिव क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप विल और नॉट को फिर से चाहो तो श्रिंक कर लो और सबसे पहले जुमले के शुरू में ले आओ इसको, won't you help them,
won't you help them? क्या आप उनकी मदद नहीं करोगे? won't you come with me? क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे, मेरे साथ नहीं आओगे? या won't you come with me? क्या आप मेरे साथ नहीं आओगे? तो इस तरीके से आपके won't के जुमले भी बनते जाएंगे. हाँ, आप चाहो तो एक्सपैंड करके भी बोल सकते हो. will और not को जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही आपको कंट्रैक्टिवली ही इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है. आप चाहो तो आप इनको खोलकर इस्तेमाल करो. तो आप बोलो, एक चीज का ध्यान रहेगा उस वक्त, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि will और not के बीच में आपके ज़माइर या अस्मा आ जाएंगे. will India not win the World Cup? ठीक है, तो will India, won't India win the World Cup एक हो गया, उसको आप खोलकर बयान कर रहे हो, तो will India not win the World Cup. तो इस तरीके से आपके नेगेटिव जुमले भी बनते चले जाएंगे. उसी हिसाब से आपके जवाबात होंगे फिर. yes it won't, yes it will, no it won't, या इस तरीके से आपके जुमले बनते चले जाएंगे. लाइकवाइज यानी वैसे ही आप जब मुफस्सल सवालात पूछने लगो, यानी ऐसे सवालात जिनके आगे WH के क्वेश्चंस आने लगे, तो आपके जवाबात भी मुफस्सल हो जाएंगे. अलबत्ता आपके सवालात में होगा ये कि अब ये WH वर्ड्स सबसे पहली जगह ले लेंगे. मिसाल के तौर पर when will you be back? when will you be back from New Delhi? आप नई दिल्ली से कब वापस होंगे, कब लौटकर आएंगे. when will you be back from New Delhi? उसी हिसाब से आप एक और जुमला बनाओ. how much will this phone cost? how much will this? ये how और much मिलकर एक ये बनता है, लफ्ज बनता है. उसी हिसाब से आप उसके आगे how और much को एक साथ ले आओगे, फिर आप उसके आगे will को ले आओगे, फिर उसके बाद बाकी की चीजें फॉलो करती चली जाएंगी. how much will this phone cost? या फिर why won't they come here? वो यहां क्यों नहीं आएंगे. why won't they come here? वो यहां क्यों नहीं आएंगे. तो इस तरीके से आप कई जुमले बना सकते हो. इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ा आसान रहेगा इस तरीके से जुमले बनाना. बस आप कोशिश करते चलें. इंशाअल्लाह ताला आपकी इस कोशिश में खूब अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होगी. हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इस तरह की बरकतें अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इन कोशिशों में डालें, ताकि आपकी कोशिशें निखर कर रंग लाने लगें. बस यही कुछ था आज के दर्स के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं. इंशाअल्लाह ताला अगले अपने प्रोग्राम में हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे. We will learn something new tomorrow. समझ में आ रहा है ना आपको हम कैसे इंग्लिश धीरे धीरे बोलने लगे. We will learn something new tomorrow. We will meet you tomorrow again. हम कल आपसे फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला. चलिए यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. आप तमाम लोगों का साथ बने रहने का शुक्रिया. अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इन कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा इस तरह अरबी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान बल्कि सीखना आसान बनाए. वो अरबी ज़बान मैंने इसलिए कह दिया कि कुछ हैं और जहाँ मैं अरबी ज़बान भी सीख लाता हूँ, तो उस वजह से मैंने ये बात अचानक जहन से खुद ब खुद जहन से निकल के आ गई, ज़बान से निकल के आ गई. चलिए यहाँ रोकते हैं. इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे. वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.